کالا گلاب بھی ہوتا ہے مگر کہاں کسی سیاہ پوش سیاہ نوش سیاہ ہوش کے سیاہ سیستان میں۔ جس طرح مروارید سیاہ لاکھوں اجلے سفید موتیوں میں شاز ہی کہیں دکھائی دے جائے، باہم جڑے ہوئے سیاہ ابرو، سیاہ چشم، سیاہ کاکلیں، کالی کوئل، کالی گھوڑی، کالی معشوق، کالی کتی، کالی سپنی، کالی کبوتری، کالی تتری کمادو نکلی تے اڈی نو باج پی گیا، کالا ڈوریا کنڈے نال اڑیائی ہوئے، چھوٹا دیورا پابی نال لڑیائی ہوئے، کالی کرتوت، منٹو کی کالی شلوار، عطاؤلہ نیازی دی کالی قمیض، کالی کنگھے نال کالے وال پئیوانیاں، آمل ڈھول جانیاں، کالا کاں، کالی بلی، کالی داس، کالا شاہ کاکو، کالی ککڑی، کالی بکری، کالا کولا، کالی زبان، کالی بطخ، کالا انڈا، کالی کتاب، کالا جادو، کالا پانی، کالی چھڑی، کالے وارنٹ، اور تیرا کیا بنے گا کالیا۔ میں اندھیرے میں اندھے کی طرح اتر گیا، جیسے کوئی کاجل کی کالک میں پسی ہوئی کلونجی کی چٹکی ڈال دے۔ شرابیں شرابوں میں ملیں تو نشہ ہمہ آتشا ہو جاتا ہے، اندھیرے اندھیروں میں شامل ہو جائیں تو اجل اجالے اجل آتے ہیں، جیسے درد کا حد سے بڑھنا دوا ہوتا ہے۔ میں اندھیرے میں کیا اترا، محسوس ہوا کہ جگمگ جگمگ کرتے کسی قلزم میں آ پڑا ہوں، جنگل کی جانب نکلتی ہوئی تنگ سی پگڈنڈی، جیسے سوئے عدم نکلتی ہوئی جگر جگر کرتی سی ماب، جو ایسی روشن واضح کہ دور تک بل کھاتی اترتی چڑھتی ایک بلند سی برف پوش چوٹی کی طرف صاف نظر آ رہی تھی۔ بلند و بالا برف پوش صنوبر ساگوان چیڑ چلغوزہ شاہ بلوط اور ایلوا، خوش رنگ گل بوٹے، خوش الحان طیور، شاخساروں پہ جھولتے ہوئے سمر، جا بجا ٹمٹماتے ہوئے جگنو، ہلکی نامحسوس سی موسیقی۔ حد یہ کہ سورج بھی چمک رہا ہے، چاند کی دھیمی دھیمی چاندنی بھی چٹکی ہوئی، گرمی نہ سردی، ایک عجیب سا موسم، کوئی کچھ نہ جان پائے کہ رات ہے یا دن، موسم بہار ہے یا خزاں کی رت۔ ہلکے ہلکے گرتی ہوئی برف کے پھوہے، دائیں جانب جو دیکھا قوس قزح نے اپنی دھنک رنگ سجائے ہوئے تھے۔ میرے اللہ، یہ کون سی جگہ ہے جدھر جنت کی طرح سارے منظر، رتیں، رنگ، موسم، خوشبوئیں اور خوبصورتیاں سدا بہار ہیں۔ کچھ اور آگے بڑھا تو بائیں جانب ایک نیلے رنگ کی جھیل نظر آئی، سفید براق جھاگ، بیچوں بیچ تیرتے ہوئے راج ہنس، پروں کو جھاڑتے ہوئے مرغابیاں، اور نیل چڑیوں کے پرے کے پرے غوطہ توڑ کر ابھرتی ہوئی سنہری مچھلیاں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آگے سے کوئی کھینچ اور پیچھے سے کوئی دھکیل رہا ہے۔ میں چل بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، اور سوچ بھی رہا ہوں۔ وقت جیسے تھم گیا اور میں اڑتا ہوا اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ چکا تھا۔ وہاں تو کوئی اور ہی جہان تھا، پاؤں تلے دنیا کے تمام پہاڑ پیچھے پڑے تھے۔ کچھ دیر بعد میں نے خود کو ایک چبوترے کے سامنے پایا۔ دیکھا تو چبوترے پہ ایک کرسٹل کا بنا ہوا مزار ہے، جس کے اندر صاحب مزار کفن بردوش پڑے ہیں۔ میں فاتحہ سے پہلے السلام علیکم کہتا ہوں۔ فاتحہ دعا کے بعد میں الٹے پاؤں واپس چبوترے سے اترتا ہوں تو سفید بالوں اور لمبی ریش والا ایک بوڑھا مجھے نظر آتا ہے، جو میری جانب تحسین بھری نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میرے قریب پہنچ کر وہ کہتا ہے، تجھے یہاں پہنچنا مبارک ہو، شاہ بابا نے خاص طور پہ مجھے حکم دیا تھا کہ میں تمہیں یہاں لاؤں۔ مجھے ایک کرسٹل کا ٹکڑا دیتے ہوئے کہا، یہ شاہ بابا کی جانب سے تحفہ ہے، اب تم واپس اسی راستے سے چلے جاؤ، مڑ کر نہ دیکھنا، پتھر ہو جاؤ گے۔ قارئین، یہ تحفہ آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ یہ اسی کرسٹل کا ٹکڑا ہے جس سے کوہقاف پہ شاہ بابا کی قبر کا تعویذ بنا ہوا تھا۔ واپسی کا سفر چند لمحوں میں ہی طے ہو گیا۔ ورانڈے کی 2 سیڑھیاں چڑھ کر میں اسی دروازے کے سامنے تھا جس سے میں چند ثانیے پیشتر باہر نکلا تھا۔ پٹ ہاتھ دھرتے ہی آپے آپ واہ ہو گیا۔ اندر وہی نیم ملجگہ سا ماحول، گھٹن، اور وہی لڑکا اسی کروٹ پہ لیٹا ہوا، میرا دایاں ہاتھ میرے پائجامے کی جیب میں، جس میں کرسٹل کا ٹکڑا پڑا تھا۔ میرا جسم ہنوت سا محسوس ہوا، جیسے سینکڑوں گز طویل پٹیوں میں جکڑا ہوا ہوں، جبکہ دماغ
खोपड़ी की कोठड़ी से निकल कर झील सैफुल मलूक कोहकाफ की वसअतों बुलंदियों तक फैला हुआ था। इंसान जब अमली तौर पे किसी तहय्युर से दोचार होता है तो फिर उसे जज्ब, बर्दाश्त और समझने के लिए तन्हाई, नींद और मुकम्मल यकसुई की हाजत होती है। मैं अंदर पहुंचते ही खाट पे पड़ गया। एक एक मंजर और सामान हैरत आंखों के सामने आता जाता रहा। नौमुस सगीर और नौमुल कबीर दोनों में यही एक खूबी या खामी है कि आने जाने का बंदे को इल्म नहीं होता। आंख खुली तो मैं कई लम्हे ऊपर आसमान पे उड़ती चीलों को तकता रहा। शऊर अभी तक सोया हुआ था। जब जरा शऊर को सूझ आई तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। मजजूबों की मानिंद इधर उधर बिट बिट तकने लगा। मैं उसी जगह पड़ा हुआ था जिधर गिलहरियों ने यलगार की थी। मैं अपने जिस्म को टटोलने लगा। अपनी अपनी जगह पे हर आज़ा पूरा था। टटोलते हुए मेरा हाथ पैजामे की जेब में किसी सख्त चीज से मस हुआ। ये वही पहाड़ वाले सफेद रीश बाबे का दिया हुआ क्रिस्टल का टुकड़ा था। अब एक एक मंजर, हर देखी हुई चीज आंखों के सामने घूमने लगी। दिमाग माउफ सा हो गया। वो घर, खाट, बाबा जी, वो खातून और लड़का, आखिर ये सब कुछ क्या था? ख्वाब, हकीकत, या फिर मैं किसी जिन्नाती चक्कर में फंस गया था? नहीं, ये तागूती गलबा नहीं था। ये तो बड़े पाकीज़ा खू और नूरानी लोग थे। फिर ये भी दिमाग में आया कि जिन्नात में भी तो नेक खसलत मुसलमान जिन होते हैं। अब मैंने अपने गिरदोपेश पे नजर दौड़ाई। दूर दूर तक कहीं कोई आबादी नहीं थी। जिधर मैं पड़ा था ये बिल्कुल वही गिलहरियों के हमले वाली जगह थी। मगर अब गिलहरियां तो कुछ कोई कौवा चिड़िया भी दिखाई नहीं दे रहे थे। होने ना होने की हालत में मैं काफी देर तक वहीं पड़ा रहा। अक्सर ऐसा होता है कि आदमी खाली और जहन सा, खुली आंखों, जागते हवास के साथ ऐसी हालत गुनूद में होता है कि ज़मान व मकान का उससे ताल्लुक कटा हुआ होता है। देखता भी है, सुनता और महसूस भी करता है, लेकिन फिर भी वो एक पत्थर की मानिंद होता है। ऐसी हालत एक लम्हा भर के लिए भी हो सकती है और एक सदी के लिए भी। यूं समझ लें कि ये एक वजदानी, ज़हनी और रूहानी कैफियत होती है जो आम इंसानों पे कभी कभार और दरवेशों मजजूबों पे अक्सर वारिद रहती है। मैं भी शायद किसी ऐसी ही कैफियत में उतरा हुआ था। अंगूर के पत्ते की मानिंद मेरा खुला हुआ हाथ जमीन पे टिका हुआ, बाजू पे बोझ डाले मैं एक पहलू बैठा था कि एक मोटा सा चिमटा ऊपर चढ़ाया, कोहनी के पास बाजू की उभरी हुई नीली रग पे काट लिया। इंसान मजमौल अजायब तलवार का वार सह जाता है, लेकिन बबूल का कांटा चुभने पे बिलबिला उठता है। इस काले चिमटे का जबड़ा बड़ा तेज और टेढ़ा सा होता है, जो तेज फावड़े की तरह खाल में उतर जाता है। चिमटे के चिमटे के लिए इस कटर को खाल से निकालना बेहद मुश्किल होता है। बंदा उसे खुद ही खींच कर अलहदा करता है। इस अमल में चिमटे का धड़ अलग और सर अलग हो जाता है। मैंने भी इसे खींच कर दो लख्त कर दिया था। इस तरह काटने की जलन ने मुझे खुद फरामोशी की कैफियत से बाहर निकाल दिया। अब मैं पूरी तरह मुस्ताद था, लेकिन बिखरे हुए हवास को मुजतमा करने में कुछ वक्त लगा। सूरज की तमाज़ुत ने मुझे वक्त का एहसास दिलाया, जो मेरे शाने के ऐन अकब में चमक रहा था। मैंने जो ही पहलू बदल कर रुख फेरा, देखा कि इसी राह पे, जिस रास्ते में यहाँ पहुंचा था, दूर धूल उड़ाता हुआ कोई यक्का सर पर चला आ रहा था। मुंजमद मंजर में अगर कोई चीज हरकत पजीर हो जाए तो वो मुकम्मल तवज्जो की मरकज बन जाती है। निगाह फोकस करके गौर से देखा तो ये वही यक्का था जो मुझे यहाँ कभी कुछ इस तरह फेंक कर वापस हुआ था जैसे कोई कूड़ा गाड़ी वीराने में कचरा उलट कर भागती है। देखते ही देखते वो यक्का मेरे करीब पहुंचकर ऐन पहले वाली जगह पे ठहर गया। हालांकि आसपास और भी ऐसी जगह थी जिधर वो रुक सकता था। अब मैं उठकर खड़ा हो गया। वही यक्का बान मुंह की बीड़ी फेंकते हुए लगाम होदे में उड़ूस कर इस्तेहजाइया से मुस्कुराहट लिए नीचे उतर आया। अस्सलाम वालेकुम भाई मियाँ, तुम्हें खैर खैरियत से पाकर सच मानो बड़ी मुसरत हुई। कहो कैसी गुजरी? शाह बाबा का मजार देखा या यहीं पे पड़े रहे? लो नाश्ता करो, गरम गरम कचौरियाँ, भाजी और हलवा है। हकीम सिंह हलवाई की दुकान की खास सौगात है। सोचा कि इस जंगल में
तो देखने को कुछ नहीं मिलता, भला खाने को क्या मिलेगा? बस अब शुरू हो जाओ, गरम गरम है। उसने मुझे जबरदस्ती नीचे बिठाकर बुधना खोल कर मेरे सामने रख दिया। फिर यक्के से एक बर्तन में दही की बलोई हुई लस्सी उठा लाया। नाश्ता वाकई मजे का था। भूख भी चमक उठी। पेट भर के खाया। मुंह साफ करते हुए मैंने पूछ लिया, आप इस तरफ कहाँ? वो भी खाली यक्का, कोई सवारी वारी भी नहीं। भैया, अपने रोजमर्रा के तरीके के मुताबिक मैं घोड़ा जोत के सबसे पहले मोमिनगंज अपने मुर्शद सरकार के यहाँ चौगट चूमने हाजिर होता हूँ। रास्ते अगर कोई सवारी मिल जाए तो उससे कोई मुआवजा नहीं लेता। आज भी मैं मोमिनगंज पहुंचा तो दिल में ख्याल आया कि कल तुम्हें इधर छोड़ गया था। भैया, मोमिनगंज कुछ यहाँ से दूर भी नहीं, लिहाजा मैं यूं ही इधर चला आया। ये गरम गरम नाश्ता तो बता रहा है कि आप एहतमाम से आए हैं। नाश्ता तो मैं मोमिनगंज से रोजाना ही लेता हूँ। आज हुक्म सिंह ने कुछ ज्यादा ही बांध दिया। कहने लगा, अपने किसी मेहमान को खिला देना। अब तुम ही कहो, तुमसे बेहतर मेहमान कौन हो सकता है? यक्के पे चढ़ते हुए मजीद कहने लगा, भैया अब यक्के पे बैठ जाओ, बम्बई की गाड़ी का टाइम करीब लग चुका है। बीकानेर का सपेरा, कोट मिठन में बसेरा। कोट मिठन सिंध में हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पे मैंने बीकानेर के एक हिंदू सपेरे को देखा, जो उर्स के मेले में आए हुए गरीब भोले भाले लोगों को घेरे पदम नाग दिखाते हुए सच्ची झूठी दास्तानें सुना रहा था। पास से गुजरते हुए नागाह मेरी निगाह इसके बड़े से काले रंग पे पड़ी तो मेरे बढ़ते हुए कदम रुक गए। ऐसा खौफनाक तवील मारे स्याह एक मुद्दत के बाद दिखाई दिया था। इसका फन एक जवान आदमी के खुले हाथ के मानिंद था और दो शाखा स्याह जुबान भी खासी बड़ी और मोटी थी। मुझ पे निगाह निगाह पड़ते ही सपेरा कदरे मुतवहश सा हो गया। वो अपने गैर मामूली लंबे और खौफनाक नाक को पदम नाक बताकर कोई मनगढ़ंत किस्म की पुरस्रार दास्तान शुरू किए हुए था। अब मेरे वहां कदम बढ़ते ही जैसे वो बौखला सा गया था, चूंकि मजमा अच्छा खासा जमा हुआ था और उसकी दास्तान भी अपने नुक्ताए उरूज पे थी। इसी वजह से किसी न किसी तौर ये अपना बयान जारी रखे रहा, लेकिन साफ जाहिर हो रहा था कि इसके बयान में वो पहले जैसा तनतना और खुद एतमादी नहीं रही थी। कदरे घबराया सा नजर बचाकर बार बार मेरी जानिब कानी आंख से देखता था। मेरा हुलिया, काले कपड़े, बाल, दाढ़ी, मनके, अंगूठियों से शायद कोई गलत अंदाजा लगा बैठा या फिर मुझे पहचान गया था। मेरी मौजूदगी से जब उसे अपने पेट धंधे का मसला बिगड़ता नजर आया तो उसने गुम बोली में मुझसे मिन्नत समाजत की। आप मेरे बुजुर्ग आप मेरे बुजुर्ग गुरु हैं। मैं बेनिगाह पापी पेट का पुजारी हूँ। आपकी वजह से जुबान ध्यान मेरा साथ नहीं दे रहे। आपका हुक्म हो तो मैं अपना काम बंद कर देता हूँ। साफ जाहिर था कि मेरी मौजूदगी इस तमाशे के लिए परेशानी का बाइस थी। ये पेशावर सपेरे बड़े घाक और चातर होते हैं। सांपों मनकों इनके जहर तरियाक और 100 साल बाद जून बदलने की ऐसी मुहय्यरुल अकूल मन घड़त दास्तानें सुनाते हैं कि सुनने वाला मबहूत सा होकर रह जाता है। इन्हें सांपों के मावराई किस्से सुना सुना कर वो सिंदूर में सेंधी हुई बकरी की पूंछल को गीदड़ सिंघी और कच्चे रेठे के मेंढ पे बकरे के गुर्दों की चर्बी मथ कर उसे नाग का तिलस्माती मनका बताकर बेइलम लोगों को लूटते हैं। इनके पास मुख्तलिफ नौ के शीश नाग, पदम नाग, नाथ नाग, उड़न सांप, शीशा सांप, थोया सांप, करोंडिया, किंग कोबरा, जलेबी सांप, सांख चूर, पिचकारा, दो मुंह, खपरेला वगैरह और अक्सर के पास ग्रांडील अफई के अलावा दुनिया का सबसे छोटा सफेद सांप हिप्पा या हापा भी होता है, जिसे मजीद सनसनी पैदा करने के लिए माचिस की डिबिया या छोटी सी मिट्टी की कुल्हड़ी में रखते हैं। इस नन्हे से केचुए के मानिंद कीड़े की बाबत दास्तान तराजी करते हुए वो इरशाद फरमाते हैं कि ये सांपों का बादशाह है और पदम नाग के सर पे नशिस्त करता है। इस नन्हे से चंपा रंगत खतरनाक तरीन सांप को, जिसे बकरे की तरह खस्सी करके बेजरर बना दिया गया होता है, बगैर बताए हुए किसी की हथेली पे उलट कर ये नवीद सुनाते हैं कि आज के बाद सांपों का बादशाह तुम्हारा गुलाम हो गया है।
अब तुम्हें या तुम्हारी आइंदा 7 पुश्तों को सांपों से नुकसान नहीं पहुंच सकता। आज इस बादशाह ने तुम्हें सलामी दे दी है। फिर वो अपने झोले की किसी गुत्थी से एक जाली सांप का मन और गीदड़ सिंगी निकालते हुए इंकशाफ करते हैं कि ये उनके गुरु उस्ताद के बख्शे हुए इंतहाई कीमती तोहफे हैं जो उसने अपनी बेटी को जहेज में देने के लिए संभाले हुए थे। मगर अब चूंकि बादशाह ने तुम्हारी गुलामी कबूल कर ली है, इसलिए मेरे लिए लाजिम है कि मैं भी ये नायाब और कीमती अमानतें आपके सुपुर्द कर दूं। अब ये इस बदकिस्मत की हैसियत और जेब पे मुनहसर है कि वो इस फराडिये सपेरे को क्या नवाजता है। वैसे ये असामी ताड़ कर ही दाव लगाते हैं। इस किस्म के नौसरबाज जब अपना दारू सिक्का चला रहे होते हैं तो इस नाजुक मौका पे अगर कोई पुलिस वाला या इनसे भी बड़ा कोई गुरु सर पे पहुंच जाए तो ये बदहवास होकर पटड़ी से उतर जाते हैं। मौका पे पहुंचने वाला या ये खुद गुम बोली के जरिए आपस में मुकमुका कर लेते हैं। गुम बोली क्या होती है? ये फराडियों और छोटे मोटे दीगर जराइम पेशा अफराद के बाहमी राब्ते की खुद साख्ता जुबान होती है। इसमें उर्दू, अंग्रेजी या हिंदी बंगाली का कोई चक्कर नहीं होता। अल्फाजो आहंग, इशारों कनाइयों से बाहमी अफहामो तफहीम हो जाती है। जेब कतरे, चोर, उठाईगीर, रंगबाज, नौसरबाज, पत्तेबाज, जालसाज, फार्मूला लगाने वाले, स्विच दबाने वाले, बुर्दा फरोश, रस्सागीर वगैरह अपने खुफिया मामलात जो बीच बाजार आ पड़े वो इसी गुम बोली से तय कर लेते हैं। गुम बोली कोई मुस्तनिद कायदे कुलिये लुगत की जुबान नहीं जो किसी मदरसे या किताब नसब से सीखी जा सके। इसे जानने सीखने के लिए बंदे का कम से कम 2 नंबर और ज्यादा से ज्यादा जराइम पेशा होना जरूरी ठहरता है। मैंने इसकी इस परेशानी को महसूस करते हुए उसी की जुबान में तसल्ली दी, वो खातिर जमा रखे। मुझे इसके गैर मामूली मारे सयाह से महज देखने की हद तक दिलचस्पी है। मुकमुका या इसके धंधे में खंडत डालना मकसद नहीं। 10-15 मिनट इसके कलाम, काम और कीड़े से महजूज होने के बाद मैं गैर महसूस तरीके से पीछे कदम लेता हुआ वहां से खिसक लिया। फरीद होटल के बाहर एक हिलती चूलों वाली कुर्सी पे बैठा अपनी थकान और तिश्नगी दूर करने की कोशिश कर रहा था कि वह उधेड़ उम्र खबाचा सा सपेरा मुझे अपनी जानिब आता हुआ दिखाई दिया। वो अपने खबासत ज़दा चेहरे पे मक्काराना मगर मुतशक्किराना से मुस्कुराहट जमाए मेरी बगल में आब राजमान हुआ। पीर फकीर या अली मदद की फलक शगाफ जली लगाकर मेरे दाएं पाँव को छुआ, हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, महाराज कोई सेवा, हुक्म हो तो कुछ जल पान गंगू जमनू का आरसार करूं। मतलब ये था कि कोई खाना पीना, भांग मुधर या कोई रुपया पैसा की तलब हो तो हाजिर करूं। शहर शहर गली गली थां बितां घूमने वाले ये पेशावर दरवेज़ागर, मदारी, सपेरे और दवा दारू फरोख्त करने वाले बड़े काया क़ियाफ़ा शनास और मर्दम शनास होते हैं। भारू पे एक नज़र डालते ही इसके गोश्त पोस्त और कलेजी ओजड़ी का 99.9% दुरुस्त अंदाज़ा लगा लेते हैं, जबकि दिन भर में हजारों भले बुरों से नबर्द आजमा होने वाले ये सूर में बड़े माहिर नफ्सियात भी होते हैं। अपने भारू का तन व तोश और गर्दन का हदूद अरबा देख कर अंदाजा कर लेते हैं कि किस करवट इसकी शहरग कटेगी। मैं इस मक्कार अय्यार की मुस्कुराहट और पेशकश का मतलब समझ गया था कि वो मुझे कोई मामूली सी रिश्वत पेश करना चाहता है। मैंने उसकी बात पे सुनी अनसुनी का एक पत्थर धरते हुए पूछा, ये ऐसा सुंदर महेंद्र कीड़ा कहाँ से पकड़ा जोगी? वो खसीसे निकाले हाथ जोड़ते हुए बताने लगा, गुरु हम दोनों कीड़े बीकानेर के बकीड़े हैं। फिर अपने पगड़ से भी बड़े तोबरे पे हाथ धरते हुए बताने लगा, ये बिस और कुरूद से भरा हुआ अच्छप्पल मेरी कलमोही बहू को इसके दहेज में मिला था। और जब मेरी बहू के यहाँ नए पलहोटे पे छोर का जन्म हुआ तो जन्म अष्टमी के दिहार पे इस कलमोहे ने किसी ढंग से मेरे छोरे को चाट लिया। बड़े जतन लगाए मगर इसका देहांत हो गया। मैंने उसकी बात काटते हुए पूछा, तुमने कोई उस्तादी उपाय भी नहीं किया? किया था, मगर वही कि काले के कांटे का मंतर न जंतर,
महाराज मेरा एक ही छोर था, बड़ा दलेर और गब्बर। वो मुझे भुलाए नहीं भूलता। कुछ दिनों बाद मेरा पोता भी मर गया और फिर मेरी जोरू भी। अब मैं संसार में अकेला हूँ। अब यही कीड़ा मेरा सब कुछ है। मैं इसे अपने साथ लिपटा कर सोता हूँ कि मुझे डंक मार कर मेरा जीवन सफल कर दे, मगर नहीं, ये मेरे मुंह पे अपना मुंह रखकर सो जाता है। इसे मारा, पटखा, भूखा रखा, हर वो जतन किया कि गुस्से में आकर कभी तो मुझे काट खाए, मगर मैं इसकी बात को बीच में ना पकड़ता तो शायद वो अपनी कथा अभी खत्म करता ना करता। ये मजमा लगाने वाला सपेरा था। इनकी बातें, कहानियां ऐसी आसानी से खत्म नहीं होती, और ना ही इनकी सदाकत और करामत पर पूरी तरह यकीन किया जा सकता है। मैंने पूछ लिया, इसके मुंह में जहर है या निकाल लिया हुआ है? पहले तो नहीं निकालता था, मगर अब निकाल कर बेच देता हूँ। अब भी एक शीशी इसके जहर की मेरे पास मौजूद है, मगर इधर इस देश में इसकी कुछ कद्र कीमत ही नहीं। क्या मतलब? मैं इसकी बात पे कुछ ना समझते हुए पूछ बैठा। वो उकड़ों की हालत से जमीन पर खसकड़ा मार कर बैठते हुए बताने लगा, भारत देश में ऐसे नागरी स्याह नाग का जहर मोतियों के भाव बिकता है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में कंकरों के तोल भी कोई नहीं पूछता। आप बोलें तो मैं आपको ये अनमोल जहर दिखा सकता हूँ। मैं उसके मुंह की तरफ तकने लगा। हमाबाजी, क्षमाबाजी, पीरों से भी दगाबाजी, यानी ये मुझे भी फार्मूला लगाने की तरकीब लड़ा रहा है। बुरे के घर तक पहुंचने की खातिर मैंने इस बात में सर हिला दिया। उसने अपने कमरबंद के किसी बल के अंदर से एक छोटी सी शीशी बरामद की। हल्के दूधियाई रंगत वाले गलीज से महलूल के 15-20 कतरे शीशी में भरे पड़े थे। दूध, घी और शहद की तरह सांप के जहर के असली, नकली या मिलावटशुदा होने की पहचान भी होती है। असली नकली दूध, घी, शहद की पहचान तो बेशतर लोगों को होती है, मगर जहर, जवाहरात और तिर्याक की असल नकल या मिलावट के फर्क को महसूस करना हर एक के बस की बात नहीं होती। कीमियागर, हिकमत वाला या कोई बरकत वाला सपेरा ही ये पहचान कर बता सकता है। मैंने अपने अंदाज में परखा और इसे खरा पाया। सैकड़ों इकसाम सांपों की तरह उनके जहरों और तिर्याकों की भी कई किस्में होती हैं। इनकी रंगत, हल्का भारीपन और कदर तासीर में भी जमीन आसमान का फर्क होता है। शीशी को उलटते पलटते हुए मेरे मुंह से निकल गया, तुम जानते हो कि ऐसा जहर किस काम आ सकता है? वो पिट पिट आंखें खोले झपकते हुए बोला, ज्यादा तो नहीं जानता, बस इतना मालूम है, इससे सांप, बिच्छू, बावले कुत्ते के काटे के अलावा घंटिया और दो चार और रोगों का इलाज भी होता है। और मुझे एक सयाने ने यह बताया कि खास तौर पे ऐसे नागरी स्याह नाग का जहर बोनों के काटे का खास इलाज है।